Hello students, good morning. My name is Anju Thakur and I am taking your English subject. So, we have learned the 2.1 heading was vocation, and now we are trying to study of second chapter 2.2 heading is nature created man and woman as equals. Now, this is a nice lesson that it gives thought on, because whether a village or city, at many places we can see the inequality is done on the basis of gender, man and woman. So it more in rural areas and less in urban areas, but we are trying to learn in this lesson that nature created man and woman as equals. So this lesson teach us we should not follow any kind of such discrimination in girl or boy. So shall we start with the lesson? The house and its surroundings are sight of peace. In the early morning of April, it nestles by the side of small stream of crystal clear water. The stream tumbles down the green mountains only 2 miles or so away. There is a stretch of hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers. Between the mountain range and the house, a green is in front of the house. Trees of many kinds bearing flowers of various hues and fruits grown on all sides of the house. इसका मतलब ये हुआ एक घर है, उसके सराउंडिंग एरियाज में यानी कि उसके अगल बगल एकदम शांति है, और वो सुबह का टाइम है, अप्रैल का टाइम है, और वो सन के एकदम करीब है, यानी कि सन जहाँ से सनराइज होता है उसके सामने ही उसका घर है, बहुत क्लोज है. नेस्टलेस है ना, बहुत क्लोज है. यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, नेस्टलेस इज क्लोज टू. और उस घर के सामने एक झरना है, उससे कुछ 2 मील्स यानी कि 2 मील की दूरी पर ही है वो. देयर इज अ स्ट्रेच hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustards. और उनके घर के यहाँ पर 100 एकड़ यानी कि 100 एकड़ से भी ज़्यादा फर्टिल है, यानी कि उपजाऊ होती है एक मस्टर्ड येलो फ्लावर्स की. वो गार्डन है उनके घर के सामने. और ट्रीज ऑफ मेनी बियरिंग्स फ्लावर्स ऑफ द वेरियस यूज यानी कलर्स, बहुत सारे कलर्स उनके यहाँ मतलब ट्रीज हैं, और उसमें बहुत सारी हरियाली है, कलर्स हैं, फ्रूट्स ग्रोन ऑन साइड्स ऑफ द हाउस. और उस ट्रीज में घर के सामने ही बहुत सारे उस पेड़ पर फल उगते हैं. Second paragraph. The courtyard smells of jasmine with blooms in the bunches of white pearls. The fragrance mingles with the thin smoke that rises from sweet-smelling incense sticks. The burning incense sticks are glowing at the altar of God in the middle of the courtyard. यानी कि इतना नेचुरल, इतना अच्छा उनके घर का माहौल है सराउंडिंग एरियाज़ में. और वहाँ पे कोर्टयार्ड उनके आंगन में जैस्मिन के फ्लावर्स हैं जो उगते हैं हमेशा, जो बहुत ही महकता है. फ्रेगरेंस है ना, बहुत ही अच्छा सुगंध आता है, खुशबू आता है. और जब सनराइज होता है तो सनराइज की जो रोशनी है, पूरा रोशनी उनके घर पर आता है. ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा स्टिक लेकर खड़ा हुआ है भगवान. सी द थर्ड पैराग्राफ. Ashangbi is in her reading room and is busy writing an article. She is a middle-aged mother of 3 children and the journalist and women's rights activist. Lanthoi, her youngest daughter, enters the room. She is an intelligent girl. Today she looks thoughtful and she takes seat by her mother's side. At the sight of her child, Ashangbi lovely asks, "Have you finished your study, my dear?" "Yes, mother, I finished it last night. Today being Sunday, I want to do something interesting." Lanthoi says and waits for her mother's response. "Tell me, what do you want to do?" Ashangbi asks her, quite amused. "Mother,
Tomorrow I am going to represent the Siroe Lily House as the speaker in the symposium at our school. The topic is God created man and woman as equal. Will you spare some time to have discussion with me? Lenthoi presses on her mother. अशांगबी जो कि एक मम्मी है, वो अपने रीडिंग रूम में अपना आर्टिकल लिख रही थी, यानी कि उसका फीचर क्या है, वो आर्टिकल है, जर्नलिस्ट है. हाँ, शी इज़ अ मिडल एज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रंस एंड जर्नलिस्ट एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, यानी कि वो एक्टिविस्ट है, यानी कि जर्नलिस्ट है, वो लोगों के बारे में कुछ न कुछ लिखती रहती है. और लेंथोई उसकी सबसे छोटी बेटी जब घर में आती है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है. टुडे शी लुक्स thoughtful and she takes seat by mother's side, और मम्मी के बगल में बैठ जाती है. At the sight of her child, अशांगबी lovingly asks, "Have you finished your study, my dear?" और जब वो अशांगबी उनके बेटी से पूछती है, क्या तुमने अपना स्टडी फिनिश्ड किया, तो वो बोलती है, "Yes mother, I finished at it last night." मैंने रात को ही अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया. Today being Sunday, I want to do something interesting. आज संडे है, आज मुझे कुछ नया करना है. लेंथोई says and waits for her mother's response. और वो ऐसा बोलकर रुक गई कि शायद मम्मा कुछ बोले इस बारे में. तो मम्मा क्या पूछती है? Tell me, what do you want to do? Ashangbi asks her, quite amused. Mother, tomorrow I am going to represent a Siroe Lily House as the speaker in symposium at our school. Symposium यानी कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं Siroe Lily House में कुछ बोलना चाहती हूँ. The topic is God created man and woman as equals. और टॉपिक क्या है? भगवान का बनाया हुआ मैन और वुमेन एज इक्वल्स. Will you spare some time to have a discussion with me? क्या तुम टाइम निकाल के मेरे साथ इसके बारे में कुछ डिस्कशन करोगी क्या? लेंथोई प्रेजेस ऑन हर मदर. प्रेजेस ऑन मीन persuades someone to do something. लेंथोई जोर डालना चाहते थे अपनी मम्मी के कि वो मेरा साथ दे. लेंथोई हैज़ जस्ट अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक. Tomba, her father is a husband supportive of the activities of his wife and the loving father. He is a lawyer and social worker who advocates the cause of women. He is always proud of his wife, the 2 daughters and the son. In times of needs, the extends his helping hands to his wife and children, to the society at large. He does not discriminate between man's work and women's work anywhere. अब ये पैराग्राफ में उसके पापा का फीचर्स बताया गया, उनके पापा नेचर में कैसे हैं. हाँ, और ये डिस्कशन, ये टॉपिक की डिस्कशन उसने अपनी मम्मी से भी की और पापा से भी की. और उनके पापा का फीचर क्या है? तोम्बा. उनका पापा का नाम क्या है? तोम्बा. और वो सपोर्टिव हस्बैंड है और वो नारी की हमेशा इज्जत करते हैं और अपने वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. और वो ऑक्यूपेशन में क्या है? लॉयर एंड सोशल वर्कर भी है. हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन. और महिला जो भी उनको इनजस्टिस फील होता है तो उनके लिए वो लड़ते हैं. ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ. और उनकी वाइफ भी जर्नलिस्ट हैं तो वो अपनी वाइफ को मतलब प्राउड फील करते हैं. The 2 daughters and the son, in times of need, the extends his helping hands to his wife and the children and to society and large. यानी कि वो तोम्बा, अशांगबी, लेंथोई और उसके दोनों भाई बहन सब मिलकर अपने सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है और उनके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, यानी कि उनकी हमेशा सेवा करते हैं. ही डज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि भेदभाव नहीं करते हैं किनके बीच में, मैंस वर्क एंड वुमेन्स वर्क एनीवेयर. जो भी जेंट्स का काम है और जो भी लेडीज़ का काम है उनके बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं. एक्चुअली हमें भी वैसा नहीं करना चाहिए और अभी फ़िलहाल हो नहीं रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में ये सब डिस्क्रिमिनेट होता था. ही शेयर्स इक्वली with his wife and doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been successful professional. He wholeheartedly believes in equality.
irrespective of class, religion, and gender. In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in the society, telling her, "My dear child, the world is still full of inequalities. We have to find the way to bring equality between man and woman." उनके पापा तोम्बा वो ना ही सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों और अपने वाइफ को, वो घर के काम में भी पूरा हेल्प करते हैं, लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, फीडिंग, ये सब चीज़ों की वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं घर में। और यही सब एक्टिविटीज़ एक दूसरे को मोहित करता है। ठीक है, आप ही बताओ स्टूडेंट्स, अगर ऐसा ही हर एक के घर में हो, बाहर जॉब करने के बाद भी अपने फैमिली को अच्छे से टाइम दे, तो किसके घर में इनइक्वालिटी रहेगा? इक्वालिटी ही रहेगा ना। तो ये तोम्बा अपने फैमिली और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो जॉब के साथ साथ घर में भी फुल ऑफ टाइम यानी बहुत सारा टाइम देते हैं। और लेमेंट्स का मतलब है एक्सप्रेस ग्रीफ एंड सॉरो। अगर किसी के यहाँ प्रॉब्लम होता है तो उनके दुख में भी शामिल होते हैं। आज भी हमारे देश में यानी कि पूरे वर्ल्ड में अभी भी इनइक्वालिटी होता है। क्या हम जानते हैं? और क्या हमारे पास कुछ वे है, कुछ हमारे पास आइडिया है कि उस चीज़ को हम घटा पाएँ? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को ये बातें समझानी पड़ेगी। तो इस वजह से लेंथोई ने एक मीटिंग रखा एक स्कूल में, जिसमें सारे पेरेंट्स को, सारे मैन और वुमेन को बुलाकर एक मीटिंग रखा कि इस तरह से हम जेंडर इनइक्वालिटी को हटा सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी आ सकता है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? जब पिता ने लेंथोई को ये सब बात बताया, हर फादर्स वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लेंथोई एंड शी टेल्स हर मदर व्हाट हर फादर टोल्ड हर। तो ये सब बातें पिता ने बताया लेंथोई को, तो लेंथोई के कानों में बार बार बातें गूंज रही थी और उन्होंने जाके अपनी मम्मी को बोला, मम्मा पापा ने अच्छा एक आइडिया दिया है। अप्रिशिएटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर हिज व्यूज, Ashangbi says, your father is right. In no society do women enjoy the same opportunity enjoyed by man. It's because of your father that I feel no difference or inequality at home. But outside our home, I have seen that women have been subjugated in many ways in the against of will of God. God has sent man, woman to our earth to share the joys and sorrows of life equally, to share his blessing and enjoy the bounty of nature equally. This is what your topic means. तुम्हारा टॉपिक का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारे पिता यानी कि तोम्बा मुझसे और अपने तुम लोगों से, बच्चों से इतना प्यार करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे घर में इनइक्वालिटी हो रहा है। लेकिन आज भी मैंने बाहर की दुनिया में देखा है कि लोग इनइक्वालिटी से जूझ रहे हैं और मैं ये सब बहुत देखी हूँ कि वो लोग बहुत एक दूसरे में डिफरेंस करते हैं कि मैन अलग है, वुमेन अलग है। तो गॉड ने तो सबको भेजा है, मैन और वुमेन को, लेकिन इनइक्वालिटी कौन दिखाता है? मैन और वुमेन दोनों मिलके एक दूसरे से इनइक्वालिटी करते हैं। गांव के ज़माने में लड़कियां पढ़ नहीं पाती है बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है ना। तो ये हमारा थीम है और ये आपको एक्सप्लेन करना है। कौन बोलता है? अशांगी लेंथोई से बोलती है कि ये सारी बातें हम मीटिंग में कुछ बोलने वाले हैं। Ashangbi knows well that men and women are equal. Women who are half of the human race and are important as men. She writes and talks about such topics. Her daughter, though a child, also understands well that her mother is not a person lesser quality than her father. She says, our home is full of love with your mother. अशांगी जानती है कि हमारे घर में मैन और वुमेन इक्वल हैं, लेकिन लोगों की दुनिया में जो रेस हो रहा है कि मैन आगे है, वुमेन पीछे हैं, तो ये रेस भी वुमेन आगे बढ़ा रही हैं।
तो ये टॉपिक के बारे में वो नोट डाउन करके ले लेती है और बच्चों को समझाती है कि हाँ हमें ये सब बोलना है और ये क्वालिटी है, और हमारे पिता की जो क्वालिटी बताई गई है वो भी हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ एग्जाम्पल। आवर होम इज़ फुल ऑफ लव विथ यू मदर। अब हमारा ऐसा घर है, यूनिटी है, तो ये हमारा बहुत ही प्यार भरा घर है, ऐसा भगवान करे सबके घर में हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये लेसन कंटिन्यू करती हूँ।